गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में हम शेड्यूल के बारे में बात करेंगे कि अनुसूची क्या होती है, इसके कितने प्रकार हैं, अनुसूची और प्रश्नावली में क्या अंतर है। The term schedule will be used. It has a clear meaning. The instrument used to gather survey information through personal interview questionnaire has been used to label personal interview instruments and the attitudinal or personality instruments. The latter are called scales in this book. The schedule information includes factual information, opinion and attitudes, and reason for behavior, opinion and attitudes. An inexpensive way to gather data from a potentially large number of respondents. Comparatively on an expensive way to gather data actually filled by the एन्यूमरेटर्स एंड रिसर्चर्स। अनुसूची वह होती है या अनुसूची उसे कहते हैं जिसमें कि प्रश्नों का समूह या सूची है जो प्रशिक्षित प्रगणकों के द्वारा सूचकों से पूछताछ करके भरी जाती है। इसके विपरीत प्रश्नावली स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है। वैसे तो प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही अनुसंधान कार्य में तथ्यों को एकत्र करने का महत्वपूर्ण साधन है तथा दोनों ही शोधकर्ता के कार्य को संचालित करने में सहायता प्रदान करती है। टाइप्स ऑफ शेड्यूल। अनुसूची के प्रकार। विलेज और कम्युनिटी शेड्यूल्स। इट इज यूज्ड बाय द सेंसस रिसर्चर्स who collect general information on the population, occupation etc. कम्युनिटी के बारे में जब हम कुछ सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे कि जनसंख्या के संबंधित आंकड़े और वो किस पेशे से जुड़े हुए इन सब के आंकड़े के लिए जो अनुसूची का प्रयोग किया जाता है वह है विलेज और कम्युनिटी शेड्यूल। फिर है फैमिली और हाउस होल्ड शेड्यूल। इट गिव्स फुल डेमोग्राफिक डिटेल ऑफ द हाउस होल्ड, द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स, डेटा ऑन इंडिविजुअल ऑफ एजुकेशन, एज, फैमिली एंड रिलेशन एक्स्ट्रा। फैमिली और हाउस होल्ड अनुसूची के अंदर किसी भी व्यक्ति की एजुकेशन, उसकी उम्र, उसके फैमिली रिलेशन आदि के बारे में बताया हुआ था। उस अनुसूची को हम भरते हैं। ओपिनियन और एटीट्यूड शेड्यूल। टू शेड्यूल द व्यूज़ ऑफ पॉपुलेशन रिगार्डिंग एन इशू। जो कोई मुद्दे होते हैं, उस जनसंख्या के कोई मुद्दे होते हैं, उसके अनुसार यह शेड्यूल सलाह के अनुसार, ओपिनियन के अनुसार भरी जाती है। डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड द शेड्यूल। प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर। Questionnaire is generally sent through mail to inform to answered as specified in a covering letter but otherwise without further assistance from the sender. A schedule is generally filled by the research work or enumerator who can to interrupt the question when necessary. Data collection is cheap and the economical as the money is spent in preparation of questionnaire and is mailing the same to respondent. Data collection is more expensive as money is spent and in imparting traveling to them. Money is also spent in the preparing schedules. Next है non-response is usually high and many people do not respond and many returns the questionnaire without answering all questions. Basic due to non-response often remains indeterminate. Known response is very low because this is filled by the enumerator who are able to get answers to all questions, but even in this there remains the danger of interviewers basis of cheating. The questionnaire method is likely to be very slow since many respondents do not return the questionnaire. Information is collected well in the time as they are filled by the researcher. No personal contact is possible in the case of the questionnaire as the questionnaires are sent to respondent by the post who also in the turn return the same by post. Direct personal contact is established. Wider and the more representative distribution of the sample is possible. The difficulty is the sending
enumerators cover a relative wider area. Risk of collecting incomplete and the wrong information in relatively more under the questionnaire method when the people are unable to understand question properly. शेड्यूल में बताया गया द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज जनरली कंप्लीट एंड द एक्यूरेट टू एनुमरेटर्स कैन remove difficulties if any faced by the respondents in correctly understanding the question. As a result, the information collected through schedule is relatively more accurate than the obtained through questionnaire. The physical appearance of questionnaires must be quite attractive. This may not be the case by schedule are to be filled in enumerator and not by the respondent. This is not possible when the collecting data through the questionnaire along with the schedule observation method can also be used. The schedule process. अनुसूची की क्या प्रक्रिया है? इसके अंदर फर्स्ट है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्ड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. इसमें सबसे पहले हमें अपने उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं जो कि हमारी रिसर्च के लिए आवश्यक सूचना के तौर पर काम में आते हैं. आइडेंटिफाई द सोर्स एंड इट्स साइज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन. हमें शोध की पहचान करनी पड़ती है और हम कौन सी साइज़ ले रहे हैं क्वेश्चनरी की, लार्ज या स्मॉल साइज़, ये सभी हमें डिसाइड करना पड़ता है. एक्सेस द स्टडी टाइम एंड कॉस्ट. हमें अध्ययन का समय और लागत निर्धारित करनी पड़ती है. वर्किंग मैथडोलॉजी एंड एक्शन प्लान. हमें किसी भी अनुसूची को बनाते समय एक्शन प्लान बनाना पड़ता है. किस विधि का हम चयन कर रहे हैं ये सब भी हमें पता लगाना पड़ता है. कलेक्ट डेटा एंड द प्रिपेयर एंड एनालिसिस रिपोर्ट. हमें जो प्राप्त समंक हुए हैं उनकी हमें विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है. हाउ डू शेड्यूल्स वर्क. अनुसूची किस प्रकार से कार्य करती है. रेदर एक्सपेंसिव मेथड. ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है और इसमें जो रेस्पोंडेंट होते हैं द इन्यूमरेटर डू नॉट कम चीप और रिसर्च स्कॉलर एक्सपेंसेस ऑफन रन हाई. जो उत्तरदाता होते हैं उनको तो सिर्फ उत्तर देने होते हैं लेकिन जो बनाने वाला होता है अनुसंधानकर्ता उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे अनुसूची को तैयार करते समय लग जाते हैं. शेड्यूल आर फिल्ड बाय द रिसर्चर्स हु कैन बी इंटरप्ट द क्वेश्चन इफ़ नेसेसरी. अनुसंधानकर्ता को स्वयं जगह पर उपस्थित रहना पड़ता है और रेस्पोंडेंट से क्वेश्चन के आंसर प्राप्त करने पड़ते हैं. नीडलेस टू से द आइडेंटिफाई ऑफ द रेस्पोंडेंट इज नाउ. रेस्पोंडेंट जो उत्तरदाता है उसको उसकी पहचान करना एक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है. इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज़ बोथ एश्योर्ड एंड पंक्चुअल. अनुसूची के द्वारा जो भी सूचनाएं प्राप्त की जाती है वह महत्वपूर्ण होती है, एश्योर्ड विश्वसनीय और पंक्चुअल होती है. शेड्यूल मेथड. अनुसूची की विधि क्या है. अ शेड्यूल इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन ऑन अ गिवन टॉपिक विच आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर और इन्वेस्टिगेटर पर्सनली. इसके अंतर्गत ये प्रश्नों का एक समूह है जिसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता और जो अनुसंधान कर रहा है दोनों ही पर्सनली इसमें टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं. ये डायरेक्ट फेस टू फेस टेक्निक है. लाइक questionnaires but filled by the enumerator who are specially appointed for the filling questionnaire. Enumerator explain the aims and objective to respondent and fill up the answer in the provided space. खुद अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के समक्ष उपस्थित होता है और उसको सारे क्वेश्चन का उद्देश्य और उसके लक्ष्य बताता है. उसके अनुसार वो उसको क्वेश्चन आंसर फिल करवाता है. इन कंटेंट डायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल एज क्वेश्चन इज अ टेबुलर फॉर्म. वह तो या सीधी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछता है या एक टेबुलर फॉर्म में उत्तरदाता से प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करता है. अनुसूची प्रणाली के द्वारा महत्वपूर्ण और गहन सूचनाएं भी प्राप्त होती है. अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को हर जगह स्वयं उपस्थित रहना होता है, अतः ये काफ़ी व्ययपूर्ण प्रक्रिया है. अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं उस स्थान पर उपस्थित होता है अथवा अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकता है. अनुसूची की अपेक्षा प्रश्नावली का प्रयोग बड़े क्षेत्रों में किया जाता है.
और अनुसूची का सीमित क्षेत्र में ही प्रयोग किया जाता है। अनुसूची में शोधकर्ता स्वयं इसको भरता है। थैंक्स।